Hello friends, I am Anil Kumar Tiwari. Today we are going to discuss a new topic in the current affairs, which is essentially Commodity Act 1955, because an ordinance approved to amend the Essential Commodity Act 1955. This act we will see in the section wise. So let's start. First we will see why appeared in the current affairs. ये क्यों current affairs में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं. Then we will see what is the Essential Commodity Act या एक्ट क्या है. Then we will see what is the amendment क्या है, संशोधन क्या है. Then we will see what is the definition of essential commodity की परिभाषा क्या है. Then we will see how and under what circumstances can the government impose a stock limit. कैसे सरकार स्टॉक लिमिट को इम्पोज करता है. Then we will see why was an amendment needed in the EC Act. अमेंडमेंट क्यों जरूरत पड़ा एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वी विल सी व्हाई अपीयर्ड इन द करेंट अफेयर्स. ये करेंट अफेयर्स में क्यों आया. बिकॉज ऑफ दिस ए न्यूज अपीयर्ड इन द पेपर्स Indian Express and so many papers that the cabinet awarded essential commodity act and approved ordinance to each barrier fitted. तो देखते हैं ये न्यूज क्या है. व्हाट इज द न्यूज. Why appeared in the current affairs news? The Indian cabinet has approved the ordinance to amend the Essential Commodity Act 1955 to deregulate commodity. Not regulate, it deregulate the commodity such as the cereals, pulses, oilseeds, edible oils, onions and potatoes. The ordinance, once assented by President of India and notified in the gazettes, will become law. यह ऑर्डिनेंस है, एक प्रेसिडेंट के द्वारा असेंट मिल जाए और यह नोटिफाइड हो जाए गजट में तो यह बिकम द लॉ. सो देखें व्हाई अपीयर्ड इन द current affairs. Because it deregulated the commodity such as cereals, pulse, oilseed, edible oil, onion and potato. Why is Essential Commodity Act? What is the Essential Commodity Act? यह Essential Commodity Act 1955 क्या है. 1955 मीन्स 1955 में यह लाया गया था. ये क्या है. The ECA, शॉर्ट में इसे ECA कहते हैं, Essential Commodity Act, was enacted by way back in 1955. 1955 में enacted हुआ है, लागू किया गया. It has since then used by the government to regulate the production, supply and distribution of the whole host of commodity it declared essential in order to make them available consumer at fair price. यह 1955 में लाया गया था और यह गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करता था किसको, इसेंशियल कमोडिटी को, क्योंकि वह कंज्यूमर को फेयर प्राइस पे मिल सके. तो दिस इज इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955. व्हाट इज द अमेंडमेंट. अमेंडमेंट क्या है जिसका ऑर्डिनेंस अप्रूव किया गया है, वह क्या है देखते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेड दैट द ऑर्डिनेंस हैज इंट्रोड्यूस्ड in the new subsection 1A in subsection 3 of the Essential Commodity Act 1955. The amendment law provide the mechanism for the regulation of agriculture food stuff, namely cereals, pulses, oilseed, edible oil, खाद्य तेल, potato, आलू and supply under extraordinary circumstances which include extraordinary price rise, war, famine, natural calamity of severe natures. यह अमेंडमेंट जो कहता है कि जो इसेंशियल कमोडिटी है उसको रेगुलेट तभी किया जाएगा जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइस हो. किसके चलते, कभी वार हो, युद्ध, फेमिन, अकाल पड़े, नेचुरल क्लामिटी, कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए ऑफ द सीवियर नेचर. व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ इसेंशियल कमोडिटी. इसेंशियल कमोडिटी की परिभाषा क्या है. व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ इसेंशियल कमोडिटी. देयर इज नो स्पेसिफिक डिफिनीशन ऑफ इसेंशियल कमोडिटी. कोई स्पेसिफिक डिफिनीशन नहीं है इसेंशियल कमोडिटी इन द ईसी एक्ट, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में. सेक्शन 2A ऑफ द एक्ट स्टेट्स एन इसेंशियल कमोडिटी मीन्स ए कमोडिटी स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट.
वह कमोडिटी जो शेड्यूल्स में, इस एक्ट के शेड्यूल्स में है, दैट इज कॉल्ड इसेंशियल कमोडिटी। इसकी कोई डिफिनीशन नहीं दी हुई, एक शेड्यूल बनाया गया, उस शेड्यूल में कुछ कमोडिटी को रखा गया है, दैट कमोडिटी इज कॉल्ड essential commodity. The act gives power to the central government to add or remove the commodity in the schedules. Central government को यह power दिया गया through the act, they can add or remove the commodity in the schedule. The center, if it is satisfied that it is necessary to do so in public interest, can notify an item is essential in the consultation with state government. अगर सेंटर सेटिस्फाइड हो जाए कि कुछ कमोडिटी है जिनको इसेंशियल कमोडिटी में रखना है, उस शेड्यूल में रखना है, तो स्टेट के कंसल्ट से उसे रख सकता है विद द कंसल्टेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एट प्रेजेंट शेड्यूल कंटेन्स 9 कमोडिटीज। अभी शेड्यूल में जो इसेंशियल कमोडिटी का शेड्यूल है उसमें 9 कमोडिटीज है। ड्रग्स में फर्टिलाइजर, वेदर ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, कार्बनिक और मिक्स्ड हो, फूड स्टफ्स इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल, हैंकायान मेड होली फ्रॉम कॉटन, पेट्रोलियम एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, raw jute and jute textile, seed for food crops and seeds for fruits and vegetable, seeds for cattle fodder, jute seed, cotton seed, face mask and hand sanitizer, ये दोनों अभी जोड़ा गया। The latest item added in the schedule are face mask and hand sanitizer which were declared essential commodity with effect from 13 मार्च 2020 इन द वेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड-19 पेंडेमिक में फेस मास्क के चलते फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर को इसेंशियल कमोडिटी में रखा गया है, जिसे सरकार रेगुलेट कर सकती है उसकी प्राइस को। बाय डिक्लेयरिंग द कमोडिटी एज एन इसेंशियल, द गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कमोडिटी टू इम्पोज स्टॉक लिमिट। वह इम्पोज कर सकता है स्टॉक में, कितना स्टॉक रखना है, कैसे रखना है, वह इम्पोज कर सकता है। हाउ एंड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन गवर्नमेंट इम्पोज स्टॉक लिमिट? कौन सा ऐसा परिस्थिति होगा और क्या परिस्थिति होगी जिसमें सरकार स्टॉक लिमिट को इम्पोज कर सकता है? अंडर द अमेंडेड ईसी एक्ट, संशोधित ईसी एक्ट में, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, एग्री फूड स्टफ कैन ओनली बी रेगुलेटेड। केवल एग्री फूड स्टफ यानी एग्रीकल्चर, कृषि से संबंधित फूड स्टफ है, ओनली बी रेगुलेटेड अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। दिस वर्ड इज extraordinary circumstances such as war, famine, extraordinary price rise and natural calamity. However, any action of imposing a stock limit will be based on the price trigger. Thus, in the case of horticulture produce, अगर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में हो तो 100% इंक्रीज इन द रिटेल प्राइस ऑफ द कमोडिटी ओवर इमीडिएटली, 100% उस कमोडिटी की प्राइस तुरंत बढ़ गई हुई है, प्रीसीडिंग 12 मंथ और एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ द लास्ट 5 ईयर, विच एवर इज लोअर विल बी ट्रिगर फॉर इन्वोकिंग द स्टॉक लिमिट ऑफ सच कमोडिटी। फॉर नॉन पेरिसेबल एग्रीकल्चर फूड स्टफ, जो खराब नहीं होने वाली है, द प्राइस ट्रिगर विल बी 50% इंक्रीज इन द रिटेल प्राइस। उसमें 100% था हॉर्टिकल्चर में, इसमें 50% है, ऑफ द कमोडिटी ओवर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 मंथ और एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ द लास्ट 5 ईयर विच एवर इज लोअर, देन द गवर्नमेंट रेगुलेटेड दिस कमोडिटी। However, exemption from the stock holding limit will be provided to the processor and value chain participants of any agriculture produce and order relating to public distribution system. So, why an amendment needed in the EC Act? तो amendment की क्यों जरूरत था, क्यों किया गया amendment? The EC Act was legislated at the time when the country was facing scarcity of the food stuff. 1955 में यह लागू किया गया, उस समय स्कार्सिटी थी फूड स्टॉक की, ड्यू टू द परसिस्टेंट एफिस्मल लेवल ऑफ द फूड ग्रेन प्रोडक्शन नहीं होता था। द कंट्री वाज डिपेंड ऑन द इम्पोर्ट एंड असिस्टेंट सच एज द PL 480 टू फीड द पॉपुलेशन। उस समय इम्पोर्ट पे था, जैसे US से आता था PL
PL48 एग्रीमेंट है जो कि पुअर कंट्री को यूएस द्वारा कुछ अनाज दिए जाते थे, इसको पर्सनल लॉ 480 बुक बोलते हैं। यह 1954 में आया था यह एक्ट। इन दिस सिनारियो टू स्टॉप होल्डिंग and black marketing of the food stuff, the Essential Commodity Act was enacted 1955, but now situation has changed. उसके लिए या रेगुलेशन के लिए या 1950 EC एक्ट 1955 उस समय लाया गया था। तो सिचुएशन नाउ हैज बीन चेंज्ड, सो दिस एक्ट, रेलेवेंसी ऑफ दिस एक्ट इज not now is in this environment, so the central government and the government changed this rule, amend through the ordinance. A note prepared by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution so that wheat increase 10 times wheat increase हो गई अब 50-60 से जो 100 मिलियन था उस समय, लेस देन 10 मिलियन टन 1560 तो मोर देन 100 मिलियन अब हो गया। उस समय 10 मिलियन होता था, अब 100 मिलियन हो चुका। ड्यूरिंग द सेम पीरियड प्रोडक्शन ऑफ राइस वो भी बढ़ गया, 50 मिलियन से 110 मिलियन टन हो गया। द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस इंक्रीज 2.5 टाइम्स, वो भी बढ़ गया, 10 से 25 मिलियन टन हो गया। इनफैक्ट इंडिया इज नाउ बिकम द एक्सपोर्टर ऑफ द सेवरल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। विद दिस डेवलपमेंट द EC एक्ट हैज बिकम द एनार्कोनिस्टिक। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि सारी चीज़ बढ़ रही है, अब किसी फूड स्टफ की कमी नहीं है। सो दिस एक्ट नीड अमेंडेड। सो दिस इज द Essential Commodity Act 1955. Okay, thank you. If you like this video, then subscribe, like and share. Have a good day.